Good morning, my dear respected students. Again, we are supposed to discuss the content of a periodic test 1. So here it is. We just begin, and hopefully today is day 4 that we are going to revise our syllabus here. And I'm just going to discuss with you all that it's very important while you are supposed to revise your content, you are requested to do the practicals for the same in spite of learning things manually. Otherwise सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होगा. You are supposed to do it practically, and then only you are able to do it in a proper way. So what we are going to do here, we are supposed to discuss a practice assignment number 4 here. And my dear respected students, kindly concentrate here. And first question says that find the invalid identifier from the following. So can you please analyze, my dear students, can you please analyze and give me the answer that which is to be considered as the correct one? Invalid identifier. Here the important thing you have to remember that they says that you are supposed to find out the invalid identifier. Very good. कौन try करेगा? जल्दी से. विनय try करेगा? वेरी गुड. जपरा साहब अनम्यूट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको. अनम्यूट करिए. हाँ मेरा बच्चा. विनित, कोई गेस है तेरे पास? किसी तरीके से बता सकता है कि क्या होना चाहिए यहाँ पे आंसर? नहीं सर, नहीं बता सकता. एक बार मेरी ध्यान से सुनना विनित बेटा. They are saying that you are supposed to find the invalid identifier. Invalid का मतलब क्या होता है? वो identifier जो valid नहीं है. Those not considered to be as a valid. Number 1, ये देख, सबसे पहले क्या important चीज याद रखनी है कि जो आपका identifier है उसके अंदर अल्फाबेट्स हो सकते हैं. वेरी गुड. सेकंड, उसके अंदर नंबर्स भी हो सकते हैं. थर्ड, उसके अंदर आप अंडरस्कोर का प्रयोग कर सकते हैं. बट क्या चीजें नहीं हो सकती? वहां पे आप कोई अदर ऑपरेटर्स जो है जैसे @ हो गया, उसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे. अगर कोई कीवर्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट, इट सेज दैट इफ एनी कीवर्ड इज देयर देन ओनली वी आर नॉट सपोज्ड टू sort out consider it as a valid identifier. तो अब जरा ध्यान से देखना जरा एक बार. मेरा बच्चा और मेरे बच्चे भी देख रहे हैं. वेरी गुड. ध्यान से देखिएगा, कृपया करके ध्यान को इस और एकाग्रचित कीजिएगा. या आपको आंसर पता है? या मेरा बच्चा आंसर बताना नहीं है, सिर्फ ये बोलना है कि पता है कि नहीं. सर थोड़ा सा आइडिया है बट श्योर नहीं हूँ. यू आर नॉट श्योर अबाउट दिस. ठीक है, ओके. खुशी, श्योर हो कि अभी श्योर नहीं हो मेरा बच्चा? हाँ जी सर, पता है. आंसर पता है. वेरी गुड, ग्रेट. ओके, अब ये देखो हिया, आप बोल रहे हैं कि आप श्योर नहीं है. यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा. मैंने लिखा, ये मेंशन किया हुआ यहाँ पे फाइल अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू 10, और मैंने दोबारा जब मेंशन किया फाइल अंडरस्कोर नेम, तो ये बिल्कुल परफेक्ट आ गया. कहता इट्स ओके, फाइन, ये वैलिड है. इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं है. सेकंड थिंग, इट सेज SL1 इज इक्वल टू 10 अगेन. बिल्कुल ये भी जो है वैलिड है. उसका कारण है कि इसने हमें कोई एरर शो नहीं किया. इट मेक्स सेंस दैट दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स एंड नंबर्स. what we are going to do next here, my dear respected students, kindly concentrate. After that, what we consider, we mention it as a num is equal to 34 and hit the enter, and again we type it as num. It display the value that is num storing a value that is a 34, or we can also mention it as num 3410, and we can also mention it as num 34 and enter. But what happened here when we mention it, when we type a false here, it appears in a different colors. It makes sense that this is a keyword, and when we are supposed to enter in that case, and when we are supposed to pass any value in that, it says syntax error cannot assign to false. Why so?
because this false is a keyword. And my dear respected students, if now you are able to get my point, in that case, when we are supposed to talk about the answer, it says yes, this is the answer here. Because if you want to mention the justification here, you can mention it as false is a keyword. False is a keyword. मेरे बच्चों को जिनको मेरी बात समझ आई, खुशी आ गई? खुशी को तो पता ही था, खुशी बोल रही थी मुझे पता है. ओके हिया. यस सर, यही सोचा था. अरे वाह, यही सोचा था, पर शायद मत वर्ड यूज किया कर, तो थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट है आपके लिए. विनय जापरा साहब. यस सर. जापरा साहब, चीजों को सीखना है और जब हम एग्जाम में बैठेंगे तो गलतियां कम करने की कोशिश करनी है. ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच. ओके, अब मेरे बच्चे मुझे बताएं, सेकंड क्वेश्चन आ गया मेरे प्यारे शिष्यों. इवेल्युएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. इसको इवेल्युएट करना है. कौन इनिशिएटिव लेगा? हिया के खुशी लेगी या विनीत लेगा? वेरी गुड, कौन बताएगा? बताओ जल्दी, कौन इनिशिएटिव लेगा? मैंने ये नहीं बताया, बोला कि आप आंसर बता दीजिए. आई एम जस्ट टेकिंग दिस वर्ड दैट हु इज सपोज टू टेक अ इनिशिएटिव फॉर दिस. वेरी गुड. खुशी अनम्यूट कर जरा एक बार अपने आप को. यस सर. हाँ मेरा पुत्र, कोई आइडिया है इसका, हाउ वी कैन इवेल्युएट दिस वन? जी सर. बोलिए. सर. हाँ जी. हाँ जी, यहाँ पे 7 लेस देन 19. ना 7 तो है ही नहीं भाई, कहीं पे नहीं है 7. 17. क्या आएगा यहाँ पे? ट्रू आ जाएगा. वेरी गुड. मैं इसीलिए मैंने फॉल्स लिखा था, मैं देखता हूँ इसको. यहाँ आ गया ट्रू और लिख दिया. अब 30 ग्रेटर देन 18. जाफरा साहब ध्यान से देखते जाइएगा. फिर क्या आएगा? ये भी मेरी बेटी ने बोला सर ट्रू हो जाएगा. अब मैंने लिखा एंड नॉट, ये मैंने ऐसे लिख लिया. 19 इज इक्वल टू 0. नॉट लिखा है तो नहीं, मैं अभी स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ मेरा बच्चा, अभी नहीं चल रहा. अभी सिर्फ यही पूछ रहा हूँ कि 19 इज इक्वल टू 0 क्या लिखेंगे आप? फॉल्स लिखेगी. अब जरा ध्यान से देखना मेरे बच्चों, जब हम हायरार्की की बात करते हैं, अब यहाँ कृपया करके देख लीजिएगा. आई एम जस्ट मेंशनिंग हियर अ हिंट हियर which says when we talk about a hierarchy of that, first is not, if I am correct here, second is to be considered as and third is to be considered as or. अगर आपकी तरफ से कोई सजेशन हो तो आप बता सकते हैं मुझे. अब मैंने क्या किया, it says that when we talk about the hierarchy, it says I am not, I am and I am or. Now what we are going to do here, kindly concentrate. First of all, we are just going to mention it as true here, true or true again. And now what happened here, because not is a unary operator, it requires a one operand. खुशी क्या होगा? अब not false लिखा हुआ है. अरे वाह, वेरी गुड, उसका अपोजिट हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा. हिया जी अब थोड़ा सा गाइड कर दीजिए, आप किसको सॉर्ट आउट करना है हम लोगों ने? एंड को. वेरी गुड, मेरा पुत्र कहता है एंड को. अब मैंने लिखा ट्रू और, अब मैंने किया ट्रू एंड ट्रू. बता दे हिया क्या आएगा ट्रू एंड ट्रू में? ट्रू. मेरे बच्चे ने बोला सर ट्रू. अच्छा, अब विनीत जापरा साहब बोलेंगे. जापरा साहब अब लिखा हुआ है ट्रू और ट्रू, ये हमारा लास्ट है प्रायोरिटी. इसका आउटपुट क्या आएगा? सर और नहीं और अकेले ट्रू आ जाएगा. ट्रू और ट्रू, दैट शुड बी कंसीडर्ड एज अ ट्रू हियर. वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू विनीत जी, गॉड ब्लेस यू. ओके, now we are just moving towards a next part here. Kindly concentrate, it's my humble request. Okay, great. Now concentrate here. अब थोड़ा सा आप इनिशिएटिव लीजिएगा और बताइएगा. Find output generated by the following code. str is equal to computer. Okay, great. So I'm just going to open a shell here, and what I'm going to talk about, I'm just simply going to type str is equal to computer here and double quotes and hit the enter. So what will be there in str? That is a computer. अच्छा, अब ये लिखा हुआ है यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है str -4 कॉलन. अब यार थोड़ा सा गाइड कर दो ना यार, क्या होगा ये, समझ नहीं आ रहा बेटा.
कौन बताएगा? वेरी गुड। UTER आ जाएगा। UTER आएगा। अच्छा, ये मेरी बेटी हिया बोली थी मुझे लगता है ना। अच्छा हिया, एक सेकंड थोड़ा सा गाइड कर दे। 2 4 6 7 8, ओके ये मैंने 8 कर दी। एक बार सिर्फ 1 मिनट रुकिएगा आप। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, नहीं अभी ये नहीं लिखूंगा, मैं लिखा विनीत ध्यान से देखना यार। ये खुशी ने Yes. मेरी बेटी ने कैसे बोला है, ये आउटपुट मेरी बच्ची ने कैसे बोला है वो देखना है एक बार। अब COMPUTER, ये वो कैपिटल हो रहे हैं, वो कोई बात नहीं, वो आप थोड़ा सा कंसीडर कर लीजिएगा क्योंकि ये R ठीक है। अब मेरे बच्चे ने यहाँ पे क्या किया, आप जरा ध्यान से देखना। अब यहाँ पे हमने किया -1, यहाँ पे किया दैट शुड बी -2, उसके बाद यहाँ पे आया -3, यहाँ पे आया -4, यहाँ आया -5, यहाँ आया -6, यहाँ आया -7 और यहाँ आया -8। यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक वैसे तो आंसर तो मुझे लगता है पता है कई लोगों को, बट यहां तक वैसे अदरवाइज क्लियर हो गया? यस और नो में आंसर करिएगा अनम्यूट करके प्लीज। यस सर। अरे वाह, Yes. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो अब मैंने क्या किया, जरा ध्यान से देखिएगा। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, काइंडली कंसंट्रेट। जापरा साहब, अब यहाँ क्या हुआ, अगर आप बड़े ध्यान से इस चीज को देखें तो अब ये क्या कहता है कि हमारे पास ये इंडेक्सिंग है, एक फॉरवर्ड इंडेक्सिंग है और एक बैकवर्ड इंडेक्सिंग है, और हमारे पास ये वैल्यूज हैं जो स्टोर है यहाँ पे। तो अब हमने क्या किया, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इट सेज I am just begin from a -4. I am just begin from a -4 colon till end. It makes sense that they are talking about, they are actually talking about this particular range, that UTER. They are talking about UTER, and here all the characters is to be considered as a small letters, which is mentioned in our example as well. So as instructed by here, it says UTER. ओके, अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा यार, एक बार मैं यहाँ लिख के चेक कर लेता हूँ शेल में, एक बार शेल में लिख के चेक कर लेते हैं। मैंने लिखा STR इज इक्वल टू STR, वेरी गुड। अब कंवलजीत सर ने मेंशन किया -4 कॉलन एंड सबस्क्रिप्ट, ओके। अब मैंने STR टाइप करके एक बार चेक कर लिया, UTER आ गया, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब इसका क्या होगा, विनीत एक बार क्लू कोई दे तो यार, कि ये लिखा है STR में मुझे पता है क्या है, UTER मल्टीप्लाई बाय 2 का आउटपुट क्या होगा, कोई गेस लगाना। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, घबराने की जरूरत नहीं, गलत बता दे कोई नहीं। सर C और 0 1 2 को मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं, 0 1 2 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, नहीं ऐसा नहीं है, ध्यान से देख। MUTER को पता है? है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? MUTER है। नहीं 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 नहीं, ओके। खुशी को पता है, सिर्फ ये बोलना है कि पता है कि नहीं। जी सर। और मेरी बेटी हिया को भी पता है, पता है हिया? यस सर। वेरी गुड। अब हमने क्या किया, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, जापरा साहब चेक करिएगा, मैंने यहाँ पे लिखा PRINT प्रिंट STR मल्टीप्लाई बाय 2। मैंने जैसे एंट्रेट किया, इसने क्या किया जापरा साहब, UTER इज सपोज टू बी डिस्प्ले ट्वाइस एंड हियर इट इज UTER। अगर मैं इसको लिख देता, जितनी बार लिखूंगा उतनी बार वो उसको मल्टीप्लाई करता जाएगा। मैंने लिखा 5 टाइम्स और एंटर हिट किया तो यहाँ पे 5 टाइम्स स्क्रीन पे नजर आ गया। होपफुली मेरे बेटे को मेरी बात समझ आ गई है और मेरे बच्चे ने उस चीज को अंडरस्टैंड किया है, दैट व्हाट विल बी द एक्चुअल आउटपुट हियर। वेरी गुड, व्हाट विल बी द एक्चुअल आउटपुट हियर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। मैंने यहाँ पे आगे मेंशन किया, दिस विल बी आंसर and this is this one, and we are supposed to make them bold here that you all are able to understand. Okay, now next step, kindly concentrate dear students. Now question says write definition of method msearch within bracket states to display all the state names from a list of states which are starting with a alphabet M.
For example, if we talk about an example here, it says these are the different values which is being supposed to be considered here, and the desired output is this, that is MP, MH and MZ. कौन मेरी सहायता करेगा? वेरी गुड, अपने आप इनिशिएटिव लीजिए फटाफट। मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूं कंटेंट को। वेरी गुड, कौन इनिशिएटिव लेगा? वेरी गुड, संजना जी नमस्कार, कैसे हैं आप? सब ठीक है, कुशल मंगल, ऑल इज वेल? ठीक है संजना, ये क्वेश्चन देखा था अभी आप, कोई बात नहीं, अभी आप आए हैं, इट विल टेक सम टाइम, नो इश्यूज विद दैट, आप देखते रहिए। खुशी गाइड कर सकती है हाउ वी कैन डू दिस क्वेश्चन? यस सर। अरे वाह, तो बहुत इंटेलिजेंट है यार, मेरे से भी। ओ सॉरी, मैं तो अपनी बात ही नहीं कर रहा। हाँ जी खुशी, सबसे पहले क्या करूं, थोड़ा सा गाइड करती जा। सबसे पहले मैं एक फंक्शन बनाना चाहता हूं, क्या करूं? डेफ। अरे वाह, और फिर मैंने लिख लिया एम सर्च। ठीक है, एम सर्च के अंदर क्या जाएगा बच्चे? स्टेट्स। मेरी बेटी ने बोला स्टेट्स चले जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब मैंने क्या करना है, वो सारे के सारे स्टेट्स दिखाने हैं जो स्टार्टिंग विद एम हो रहे हैं। तो क्या करूं, यहाँ पे समझ ले कि मेरे पास स्टेट्स में वैल्यूज आ गई। तो लूप लगा ले। लूप लगाएं, लूप ऐसे लगा दूं, फॉर आई इन स्टेट्स। ठीक है, ये लगा दिया। अब क्या करूं, अगर इफ आई जीरो, अरे वाह, अगर आई जीरो इक्वल आई जीरो इक्वल टू एम इजिकल टू एम। हाँ पुत्र, क्या करवाऊं? प्रिंट करा लो, ये प्रिंट करवा लूं। और अब नीचे फंक्शन को कॉल करूं मेरा पुत्र। फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या लिखूं यहाँ पे? स्टेट से ले लिया, स्टेट से ले लेता हूँ फिलहाल नाम। वो जरूरी नहीं कि हमने इनपुट करवाना है, हम यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, है कि नहीं? यहीं से कॉपी पेस्ट एक बार करके देख लेते हैं, हमारा टाइम भी सेव हो जाएगा। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर जस्ट गोइंग टू पेस्ट। ओके, इट्स नॉट वर्किंग हियर, no issues, it will take some time, no problem with that. I'm just going to do it manually. ये डबल कोट्स बस एक बार लगा दूं, फिर अगली कार्रवाई की ओर बढ़ते हैं। ये यूनिकोड होता है ना, यहाँ पे कई बार सपोर्ट नहीं करता। जैसे एक बार नुपुर की क्वेरी आई थी कि सर मैंने नेट से कॉपी पेस्ट किया कोई टेक्स्ट और वो नहीं चल रहा था। ओके, so what we are going to do here, we are just going to make the modifications here. Yes, we having a content, great. Okay, after that what we are going to do, I'm just going to call that function ना m search, और m search के अंदर क्या भेजूं भैया? status, states. Okay, I'm just going to save it. Yes, hopefully it works, hopefully. So I'm just going to mention ps, and here it is, program number is 20, and we are expecting that we get a desired output. And yes, what is the required output we have achieved here with the help of Kushi. Kushi ji, thank you very much and God bless you. हिया समझ आ गया था पुत्र कैसे किया है ये? यस सर। और संजना विरती साहब को? यस सर। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, आई एम जस्ट गोइंग टू एलिमिनेट दिस प्रोग्राम। जापरा साहब समझ आ गया? यस सर। अरे वाह, अब तूने यस बोला, अब तू फंस गया। अब तू फंस गया। अब मैं तुझसे क्वेश्चन पूछूंगा, ये देख, अब सेकंड क्वेश्चन आया। पर ये इसको पॉजिटिव नोट पे लीजिएगा कि कंवलजीत सर मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, इसको पॉजिटिव नोट में लीजिएगा जरा। ठीक है, अब ये क्या कहता है, काइंडली कंसंट्रेट हियर। इट सेज राइट अ डेफिनेशन ऑफ अ मेथड काउंट नाउ प्लेसेस टू फाइंड एंड डिस्प्ले दोज प्लेसेस नेम्स in which here are more than 7 characters. 7 से ज्यादा कैरेक्टर होने चाहिए। कहता अब ये देखो एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल लिस्ट ऑफ प्लेसेस इज मेलबोर्न, टोक्यो, पिंक सिटी, बीजिंग, सन सिटी. So now we just consider it, and if the length is greater than 7, then they are going to display the content on the screen, and expected output as based on this particular input is a pink city. So जापरा साहब, अब जापरा और संजना विरदी जी मेरे साथ पार्टिसिपेट करेंगे, अनम्यूट कर लीजिएगा।
जापरा साहब ये कहता है राइट अ डेफिनेशन ऑफ अ मेथड काउंट नाउ प्लेसेस। डेफिनेशन कैसे लिखूं यार, समझ नहीं आ रहा। सर डेफ। अरे वाह, मजा आ गया, डेफ। अब फंक्शन का नाम क्या लेना है उत्तर? वो देख क्वेश्चन में मेंशन है, राइट अ डेफिनेशन ऑफ अ मेथड काउंट नाउ प्लेसेस। क्या क्या हुआ फंक्शन का नाम? काउंट। काउंट नाउ। ध्यान से देखिएगा, यहाँ Okay. मेंशन है ना काउंट नाउ, और उसके बीच में क्या मेंशन करना है? मैंने मेंशन कर Places. दिया प्लेसेस, प्लेसेस कर दिया, कॉलन डाला, एंटर हिट किया। अब वो क्या कहता है, सुन ले जरा मेरी बात ध्यान से। वो कहता है कि अगर मैं मेन कंसीडर करूं, ये देख, अब अगर मैं मेन कंसीडर कर रहा हूं और मैंने यहाँ लिखा दिस इज अ प्लेसेस इज इक्वल टू, एक बार कॉपी पेस्ट करके देखता हूं चलता है कि नहीं। मैंने यहाँ से कॉपी लिया और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। इसका अरे वाह क्या बात है, चल पड़ा भाई। इसका मतलब है कि ये सारी प्लेसेस यहाँ पे हैं। अब मैंने क्या किया, जरा ध्यान से देखना मेरा बच्चा, मैंने फंक्शन को कॉल किया। क्या नाम है फंक्शन का? काउंट नाउ। अब मैंने यहां करके और क्या पास किया इसके अंदर? प्लेसेस। इसका मतलब ये सारी की सारी वैल्यूज जो हैं ये प्लेसेस के अंदर हैं, और मैंने इस प्लेसेस के थ्रू यहाँ पे सबको पास कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, चेक कर। अब मैंने वो फाइंड करने हैं जिनकी लेंथ 7 से ज्यादा है। तो मैंने क्या किया, मैंने लूप चलाया, फॉर आई इन प्लेसेस अगर। अब ध्यान से सुनना, अगर संजना यहां पे बता अब क्या करूं मैं? मैंने लूप तो चला लिया, 1 बाय 1 रीड कर लिया। Sir, if land places is If- greater than अरे वाह, इफ लेंथ ऑफ प्लेसेस, वेरी गुड, ग्रेटर देन 7. अरे वाह क्या बात है। और उसके बाद प्रिंट किया, क्या प्रिंट करूं पुत्र? Sir, places. प्लेसेस करूं कि आई करूं? Sir, I. आई करना है ना, हमने आई करना है। अब मैंने इसको रन किया, जरा कृपया करके ध्यान से देखिए क्या किया हम लोगों ने। कहता है यहाँ पे, कहता है सबसे पहले डेफ काउंट प्लेसेस हो गया, कहता है ओके फॉर आई इन प्लेसेस लेंथ ऑफ दिस एंड दैट। अरे वाह सॉरी, ये लेंथ ऑफ प्लेसेस नहीं आएगा, यहाँ पे भी लेंथ ऑफ आई आएगा। अब मैंने क्या किया, इसको डिस्प्ले किया। अब ये देखिए, जैसे हमने यहाँ मेंशन किया तो ये पिंक सिटी आपको नजर आ रही है। मेरे बच्चों को समझ आ गया, यस और नो? Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया मेरे बच्चों, जरा ध्यान से मन को एकाग्रचित कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट ऑल आर सपोज टू गिव मी द आंसर फॉर द सेम। व्हिच फाइल मस्ट बी पार्ट ऑफ द फोल्डर containing Python module file to make it importable Python package? कौन सा है, जरा चेक करिए इन ऑप्शंस में से। मैं फुल स्क्रीन कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, चेक करिएगा इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट होनी चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जिसको पता लग जाए आंसर वो बोलिएगा मत, हैंड रेस कर दीजिएगा चाहे। वेरी गुड वेरी गुड। मैं एक्सपेक्ट, अरे वाह, विनय जापरा साहब ने सबसे पहले हैंड रेस कर दिया, वेरी गुड। संजना हैंड रेस कर अगर पता है तो। हिया सियाल जी शायद नहीं बोलना। हिया मेरा बच्चा, पता है मेरे बेटी को, ठीक है ठीक है ठीक है। खुशी, अरे वाह, संजना ने भी हैंड रेस कर दिया। खुशी का नहीं हैंड रेस हुआ अभी, खुशी ने भी कर दिया, वेरी गुड। अच्छा शुरू करता हूं फिर अपनी बेटी से, हिया से। हिया बता इसमें क्या आंसर होना चाहिए पुत्र? Sir, C option. अरे वाह सी। अच्छा ये है क्या, ये सिंबल थोड़ा सा बता दे, पता नहीं मैंने लाइन सी क्या ड्रॉ की हुई है, समझ नहीं आ रहा क्या है। Sir, space के लिए. नहीं ये स्पेस है कि कुछ और है सिंबल? ये यू से स्टार्ट होता है, यू से। खुशी आइडेंटिफाई किया बेटा, ये क्या है? अंडरस्कोर. अरे कितनी बार है, 1 टाइम कि 2 टाइम? 2 times. अरे वाह, याद रखिएगा बेटा, जब हम init.py की बात करते हैं, इन दैट केस वी आर सपोज टू इंसर्टेड 2 underscores in the beginning and 2 underscore in the
end of that in it, and after that we are supposed to mention the extension that is to be considered as a py, and this is to be considered as your correct answer. अब देखो मैं ये बाइनरी वाला फाइल बाद में करता हूं, बाइनरी वाली फाइल बाद में करता हूं। एक बार मेरा मानना है कि ये CSV वाली फाइल के बारे में थोड़ा सा विचार विमर्श कर लें आपके साथ, जरा ध्यान से देखिएगा प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। सब लोग पार्टिसिपेट करिएगा, वेरी गुड, ग्रेट। अब मैं एक एक करके सबसे पार्टिसिपेशन करवाऊंगा, हम बात करते जाएंगे और अगली कार्रवाई जो है अपनी करते जाएंगे। मेरे बेटा एक एक करके सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, सब लोग। संजना सबसे पहले जब CSV फाइल हम शुरू करते हैं तो कोई चीज इंपोर्ट करते हैं, वो गाइड कर दे, क्या इंपोर्ट करना है पुत्र? सर इंपोर्ट CSV। मेरी बेटी ने कहा इंपोर्ट CSV, इंपोर्ट CSV। यार अगर ये इंपोर्ट CSV लिखूंगा तो फिर तो मुझे हर एक बार वो रीडर राइटर के साथ CSV डॉट लिखना पड़ेगा, तो कोई सॉल्यूशन है कि वो ना लिखना पड़े? संजना गाइड कर सकती है कि वो ना लिखना पड़े, तो क्या लिखूं यहाँ पे कि बार बार CSV ना लिखना पड़े? विनय जापरा साहब क्या लिखूं यहाँ पे कि बार बार ना लिखना पड़े मुझे CSV? पता नहीं सर। अरे पता नहीं सर, मजा आ गया, चलो बोला तो सही, संजना की तरह थोड़ी था। अब फिर अपने साथी के पास जाता हूँ, हिया के पास। हिया मेरा बच्चा, क्या लिखूं यहाँ पे कि जो मुझे फ्रॉम CSV import asterisk। अरे वाह, फ्रॉम CSV इंपोर्ट asterisk। अच्छा अब मैं पूछता जाऊंगा संजना से। संजना अनम्यूट करना है अपने आप को, ऐसे नहीं करना कि हम बंद करके बैठे रहेंगे, ठीक है? अब मैंने संजना मैंने ना फंक्शन का नाम रखना है e_data, जिससे मैंने डाटा एंटर करवाना है। क्या करूं, सबसे पहले क्या टाइप करूं फंक्शन के लिए? विनय जापरा साहब, संजना मेरे ख्याल से शायद कोई ट्रबल है या कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही, आई थिंक सो। तो विनय जापरा साहब आप बताइए, फंक्शन ले लिया मैंने, आई हैव टेकन दैट डेफ, और फंक्शन का नाम है e_data लेने के बाद मैंने ये ब्रैकेट्स डाली, सर्कुलर एंटरेट कर दिया। अब मैंने जो फाइल है वो ओपन करनी है, उसका नाम है student14.csv। मेरे बेटा बताओ क्या करूं, कौन बताएगा? वेरी गुड, जल्दी से फटाफट। विनीत, हाँ अनम्यूट हुआ है कोई? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बोल। विनीत कल किया था हम लोगों ने यार, जिसमें फाइल को ओपन करना सबसे पहला स्टेप था। हाँ जी सर। हाँ तो फिर घबरा क्यों है? ये देख, OBJ ऑब्जेक्ट का नाम ले लिया, इज इक्वल टू ओपन। अब फाइल का नाम डाला student 14 की जगह 15 ले लेते हैं, 15.csv। अब मैं इसको रीड मोड में ओपन करूँ कि राइट में करूँ? मैंने पहले लिखना है डाटा फाइल के अंदर। सर रीड। नहीं यार, मैंने डाटा राइट करना, लिखना है, लिखना। अच्छा ठीक है सर, राइट मोड, ठीक है, मैं राइट मोड कर रहा हूं। और मैंने यहाँ पे एक और चीज लिख दी, न्यू लाइन इज इक्वल टू विदाउट एनी स्पेस। खुशी बता इसका मतलब क्या है? न्यू लाइन इज इक्वल टू डबल कोट्स ओपन एंड क्लोज। व्हाई आई हैव टेकन दिस थिंग हियर? सर फिर वो नेक्स्ट लाइन नहीं कंसीडर, एंड ऑफ लाइन नहीं करेगा। वेरी गुड, जो हम कैरेज रिटर्न और न्यू लाइन वाला बोल रहे थे वो उसको कंसीडर नहीं करेगा, स्पेसेस अननेसेसरी जो है लाइन स्पेसिंग वो नहीं आएगी। वेरी गुड वेरी गुड, ओके। अब हिया बता दे जरा, एक बार गाइड कर दे। ये ओपन तो कर ली फाइल, अब मैंने राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है यार, समझ नहीं आ रहा कैसे करना है, बता दे थोड़ा सा। सर जैसे W_OBJ1 और उसमें हम इज इक्वल टू राइटर और ब्रैकेट में OBJ1। ब्रैकेट में OBJ1, इसका मतलब है अब मेरे लिए पेन तैयार हो गया है जिसके थ्रू मैं राइट करूंगा। दिस इज टू बी कंसीडर एज अ राइटर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद ना यार, ये यहाँ पे ना इन्होंने एक हेडिंग दी है, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये हेडिंग कैसे दूं। रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स, कौन गाइड करेगा? संजना बता दे थोड़ा सा प्लीज, कौन सा फंक्शन यूज करेंगे राइटर ऑब्जेक्ट के साथ जिसमें सिंगल रो को हम राइट कर सकें?
वेरी गुड। चाहे ना बोल दीजिए, नो बोल दीजिए, क्या दिक्कत है? अगर नहीं आता तो आप नो बोल दीजिए। आप सुन ले फिर मेरी बात। अब म्यूट मत करना अपने आप को। दैट इज राइटर ऑब्जेक्ट obj1 कहता ठीक है सर, डॉट राइट रो। मेरा पुत्र कितनी बार बताया हम लोगों ने कि राइट रो नाम का एक फंक्शन यूज करेंगे जो एक एक करके रोज को राइट करता है। व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, वी जस्ट मेंशन इट एज roll number. After that we just mention it as a name here, and then the last thing I think so which is to be called as the marks here, and we are just supposed to close this list and hit the enter. इसका मतलब है इस लाइन से ये वाला काम होगा, जो ये सिर्फ ये वाले इस लाइन की बात कर रहे हैं कि ये काम ये करेगा। कहता ओके, कहता अब क्या करूं? अब मैंने एक लिस्ट ले ली, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया डाटा इज इक्वल टू लिस्ट। अब मैं क्या करता हूं, मैंने इनफाइनाइट लूप में जाना है, ध्यान से देखिएगा। मैं लिखा व्हाइल इट सेज ट्रू हियर, यस नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग दीज 3 वैल्यूज फ्रॉम द यूजर, दैट इज रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स। तो क्या करूं मैंने यहाँ पे लिखा रोल नंबर, वेरी गुड। अब मैंने रोल नंबर कैसे लेना है, इंटीजर में। मैंने लिखा इनपुट और यहाँ मैंने मेंशन कर दिया एंटर रोल नंबर। कहता सर ठीक है, कहता सर हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, मुझे नेम चाहिए। मैंने लिखा नेम इज इक्वल टू इनपुट, फिर लिखा एंटर नेम। मैं शॉर्ट वे में लिखता जा रहा हूं, एंटर नेम इज इक्वल टू, मैंने इसको बंद कर दिया। ओके उसके बाद मैंने लिखा हियर इट इज मार्क्स इज इक्वल टू फ्लोट हियर, एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर फ्लोट, एंड देन अगेन देयर इज अ इनपुट हियर एंड मेंशन एंटर marks is equal to, now this is happening. Okay, अब गाइड करो क्या करूं यार, अब समझ नहीं आ रहा। मैंने डाटा तो मांग लिया उससे, भाई अब क्या करूं, कौन बताएगा? वेरी गुड वेरी गुड। संजना इससे आगे कुछ है आइडिया? संजना मेरी बेटी, वेरी गुड। चलो खुशी के पास चलता हूँ, खुशी गाइड कर दे, इससे आगे क्या करना है, भूल गया, याद नहीं आ रहा। सर डाटा इक्वल्स टू रोल नंबर कॉमा नेम कॉमा मार्क्स। मैं ऐसे करूं, मैं कोई और ले लेता हूं ना, लिस्ट जो कोई और ले लेते हैं, और यहाँ पे मेंशन कर देता हूं रोल नंबर। कहता ठीक है। उसके बाद क्या लिया था, नेम। उसके बाद क्या लिया था, मार्क्स, MARKS। ठीक है, अब मैंने बंद कर दिया। अब थोड़ा सा गाइड कर दे। अब ये भी लिस्ट आ गई मेरे पास, ये डाटा लिस्ट, ये भी लिस्ट है, ये भी लिस्ट बन गई यार। अब क्या करूं, अब कोई फंक्शन यूज करना था, पता नहीं वो डाटा डालने के लिए, है ना सर राइट ना, डाटा डॉट अपेंड, और क्या डालूं इसके अंदर, गाइड कर दे, डाटा वन। अब ये नेस्टेड लिस्ट बन गई मेरी बच्चे, क्या बना ये, दिस इज टू बी कंसीडर एज अ नेस्टेड लिस्ट। मैंने एंटर इट कर दिया। कहता अब क्या करूं, अब मैंने पूछना है उससे कि यार तू और डाटा एंटर करना चाहता है कि नहीं। तो मैंने लिखा ch इज इक्वल टू इनपुट, और मैंने बोला जो हम अपना ट्रेडमार्क यूज करते हैं, जो हम लिखते ही हैं, टाइप y और y टू एंटर मोर डाटा। अब मैंने यहाँ पे किया, इसको बंद कर दिया। कहता ओके, अब क्या करूं, अब समझ नहीं आ रहा यार, अब क्या होगा। अगर हिया बता दे थोड़ा सा क्या करना है, भूल गया, याद नहीं आ रहा। अगर ch क्या करूं, अब यस करूं, नो करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। सर नो कर देंगे इफ ch in n। हाँ, और n। अब क्या करूं, फिर क्या करूं, रोकने के लिए ब्रेक कर देंगे। मैंने ब्रेक कर दिया। इसका मतलब मेरा ये काम हो गया। पर यार एक गलती हो गई, अभी तक डाटा राइट नहीं हुआ, कहीं पे भी डाटा राइट नहीं हुआ। अब मुझे हिया एक बार बता दे क्या लिखूं कि यहाँ पे डाटा राइट हो जाए। और इस बात को ध्यान में रखना कि अब हमारे पास यहाँ मल्टीपल रोज का डाटा आ चुका है, एक रो नहीं है, एक से ज्यादा रोज हैं। बता क्या करूं पुत्र। सर राइट रोज का फंक्शन यूज करेंगे। और मैंने पहले राइटर ऑब्जेक्ट ले लूं ना, यही लेना पड़ेगा मुझे लगता है ना, राइट। उसके बाद मैंने लिखा रोज, और रोज के बाद मुझे लगता है डाटा डाल देता हूं, क्योंकि डाटा के अंदर ही है सब कुछ, है ना। और अब मैंने क्या किया, because we have opened this file, it's a better opportunity for us that we are supposed to close it like this। ठीक है,
ओके, थैंक यू वेरी मच हिया। अब देखो जरा, अब यहाँ पे आ गए ये क्वेश्चन, हमसे ये वाला फंक्शन क्वेश्चन में नहीं पूछा गया बिकॉज हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, सो वी हैव टू क्रिएट दिस वन, बट दिस टाइम दे आर सेइंग दैट वी हैविंग अ डिस्प्ले एसटीडी फंक्शन that read the content of the file student14.csv and display only those records where marks is 40 or above, 40 या 40 से ज्यादा हो। तो अब मैंने क्या किया, मेरे बच्चों कौन बताएगा? संजना, अब देख ये वाला फंक्शन का नाम है, संजना बोल जरा मेरा बेटा। हाँ जी सर। अब बता मुझे, मैंने फंक्शन का नाम लिखना है, क्या लिखूं? बोल जल्दी से। कौन सी वाला सर? ये मेरा पुत्र, ये देख जो नीचे ये लिखा हुआ है ना, जिसमें वो कहता है कि आप रीड करो इस फंक्शन से और उनकी इंफॉर्मेशन दिखाओ जिनके मार्क्स ग्रेटर देन 40 हैं। तो अब क्या है फंक्शन का नाम? क्वेश्चन में गिवन क्या है सर? DISP। हाँ, उसके आगे क्या आएगा? STD। ठीक है, मैंने ये कर दिया। अब मुझे बता, अब जरा ध्यान से मेरी बातों को ध्यान से सुनना। अब तूने रीड के लिए ओपन करना है, जैसे यहाँ पे तूने राइट के लिए ओपन किया था, अब रीड के लिए ओपन करना है। क्या लिखूं बता जल्दी से। सर obj2 is equals to, एक obj1 भी ले लेंगे तब भी चल जाएगा यार, क्या दिक्कत है इसमें। इज इक्वल टू ओपन, हाँ आगे बोल। फाइल कौन सी? student 15.csv। स्टूडेंट STUDENT 15.CSV। ठीक है, अब किस मोड में करना है, रीड में कि राइट में? सर रीड में। और तो रीड के लिए R डाल दिया, अब न्यू लाइन डालने की जरूरत नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे देख मेरा पुत्र, यहाँ पे तूने राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था राइट करने के लिए। अब यहाँ क्या करेगी, राइटर करेगी कि रीडर करेगी? सर रीडर। अभी फिर मेरे बच्चे ने लिख लिया R_obj1 इज इक्वल टू READER, रीडर, और क्या लिखा ब्रैकेट के अंदर? obj1। मतलब अब ये रीड करने वाला आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। कहता ठीक है सर। कहता अब क्या करूं, अब क्या करूं? अब रीड करने के लिए कोई, मेरे को लगता है मल्टीपल टाइम रीड करना है तो कोई लूप लगाना पड़ेगा यार। बोलो बेटा। लिखा फॉर I in R_obj1। मेरे बेटे को मेरी बात समझ आ रही है ना, कि एक से ज्यादा चीजों को रीड करने के लिए मैंने एक वेरिएबल I ले लिया, लूप चलाया रिपीटेशन के लिए, और किसके हेल्प से रीड करूंगा? R_obj1 जो मेरा रीडर ऑब्जेक्ट है, रीडर ऑब्जेक्ट। अब मैंने क्या किया, मैंने रीडर ऑब्जेक्ट में बोला अगर, अब इधर देख ध्यान से, कहता है उनका रिकॉर्ड बताओ, उन स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करो जिनका रिकॉर्ड, जहां मार्क्स क्या है, ग्रेटर देन 40। अब बता संजना क्या लिखूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे। अगर if marks is more than, नहीं नहीं नहीं, अब तू ध्यान से सुन, कि अब तो तेरे पास सारा डाटा आई के अंदर आ गया, आई के अंदर। अब मार्क्स नहीं आएगा, अब क्या आएगा यहाँ पे? if I is greater than 40। ना, इफ तू लिखती है इफ I इज ग्रेटर देन 40, अगर तू लिखती है तो आई के अंदर तो ये तीनों चीजें स्टोर है मेरा पुत्र, रोल नंबर, नेम और मार्क्स, तीनों चीजें हैं। पर तू कैसे आइडेंटिफाई करेगी? ये इंडेक्स 0 पे है, ये इंडेक्स 1 पे है, ये इंडेक्स 2 पे है, तो मेरा पुत्र कैसे करेगा इसको आइडेंटिफाई? मेरा बेटा यहाँ लिखेगा इफ I 0 लिखेगा, 1 के 2, जल्दी बोल। 2। अरे वाह, अब मैंने लिखा इफ 2 इज ग्रेटर देन 40, एंटर किया, तो अब वो क्या करे? प्रिंट मार्क्स करे कि I करे कि R_obj1 करे? क्या करे प्रिंट? सर R_obj, I करे, I। मैंने यहाँ पे I को कर दिया, ठीक है, I कर दिया। अब मेरा बच्चा कहता है कि सर ये हमारा ये